ملتے ہیں فلاں ایسے ایسے فلاں مہینے کا روزہ، پورے مہینے کی اس طرح فضیلت کہیں نہیں بیان کی گئی جو آقا کریم نے ماہ رمضان کی بیان فرمائی، اس لیے کہ آقا کریم جاننے والے، رمضان المبارک کی برکتوں کو پہچاننے والے، ان کے علم میں تھا یہ کیسا مبارک مہینہ آنے والا، اور صحابہ کرام کو بتایا اے میرے صحابہ آنے سے پہلے تیاری کرو، معمولی مہینہ نہیں، عام مہینہ نہیں، دوسرے مہینوں کی طرح یہ بھی ایک روٹین کا مہینہ نہیں، بلکہ فرمایا خاص مہینہ آنے والا ہے جو اکیلا نہیں آتا، اپنے ساتھ اللہ کی برکتوں کو لے کے سبحان اللہ۔ یہ رمضان کی عظمت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابھی رمضان شروع نہیں ہوا، چند دن پہلے آقا کریم نے صحابہ کرام کو باقاعدہ جمع فرمایا، اور پہلے بھی بتاتے تھے لیکن اس حدیث کے مطابق جمع فرما کے فرمایا میرے صحابہ میں تمہیں بتانے لگا ہوں، اطلاع دے رہا ہوں کہ اللہ کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کرو، رمضان کے لیے کوشش کرو، اپنے آپ کو مستعد کرو، انشاءاللہ جو بندہ کوشش کرتا ہے وہ کامیابی کو حاصل کر لیتا ہے۔ اب آگے چلتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں، بزرگان دین نے جو اپنے معمولات بتائے، ان معمولات کی روشنی میں دیکھیے ہر کسی کا اپنا مزاج ہے، ہر کوئی اپنے مطابق بہتری کی کوشش کرتا ہے، مسجد کی خوبصورتی کی بات ہو، مسجد کو اور خوبصورت بنانا ہے، کوئی حاجی صاحب فرمائیں گے گلدستے لگا دیے جائیں، ادھر سے مسجد کو خوبصورت بنانا ہے، وہ کہیں گے نہیں اور لائٹ لگا دی جائے، اور پوچھا جائے گا مسجد کو خوبصورت بنانا، کہیں گے بینر لگا دیے جائے، فلیکسیں لگوا دی جائے، سینری لگوا دی جائے، ہر کوئی اپنے اعتبار سے مسجد کو اچھا کرنے کی، خوبصورت بنانے کی کوشش کرے گا۔ اسی طرح بزرگان دین نے رمضان المبارک کو اچھا بنانے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے، پہلے سے بہتر بنانے کے لیے کئی باتیں ذکر کی ہے، ان میں سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بعد اوقات ہماری توجہ نہیں رہتی، ہمارا خیال نہیں رہتا، ساری زندگی گزر جاتی، قرآن کریم کے 5-6 رکوع یا 5-6 مقامات ہمیں یاد ہے، ہم وہی نمازوں میں بار بار پڑھتے رہتے ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، لیکن دیکھیے بعض سادہ لوگ جن کی توجہ نہیں، وہ عشاء کی نماز میں بھی وہی مقامات بار بار پڑھتے ہیں، پہلے سنتوں میں پڑھے، پھر بھی اگر نماز نہیں ملی تو فرضوں میں پڑھ لے، پھر وتروں میں بھی وہی پڑھے، کاش کہ ہمیں صرف 15 مقام ہی یاد ہو جو نماز میں، عشاء کی نماز میں ایک ایک کر کے پڑھ سکے۔ فرمایا اگر تو کسی کو یاد ہے الحمدللہ، اگر یاد نہیں تو کم از کم 2-3 نئے مقامات قرآن کریم کے، جہاں سے آپ کو آسانی لگی تھی، وہ 2-3 رکعتوں کے برابر قرآن کریم زبانی یاد کر لیجئے، انشاءاللہ رمضان میں ایک مزاج طبیعت بنی ہوتی، زیادہ دیر نہیں لگتی، قرآن پاک کھولا، کھول کے کیا کیا، لفظ پڑھا، آیت پڑھی، یاد ہو گئی، پھر پڑھتے رہے، گھر میں پڑھتے رہے، بازار میں 1 آیت 2 آیت، اگر آپ نہیں سمجھتے قرآن کریم کو مشکل ہے، سارا قرآن پاک موبائل میں آ جاتا ہے، موبائل کو کھولیے کہ دیکھیے کوئی سی سورت نکالیے، کتنی دیر لگتی ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان، ایک مقام یاد ہوگا،
कितनी देर लगी? ज्यादा से ज्यादा 1 दिन 2 दिन लगे। एक नई रकत पढ़ने के लिए हमें एक कुरान करीम का मकान याद हो गया। आगे चलिए, मज़वाता फना एक आयत हो गई, फबी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान 2 आयतें हो गई, वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान 3 आयत हो गई, फबी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान 4 आयतें हो गई, 5 आयतें, 4 आयतें, 6 आयतें, जितनी मुनासिब लगे। तो कोशिश फरमाइए जहां से आपका जी चाहे पूरे कुरान पाक में कम अज कम 3, 4, 5, 6 नए मुकाम याद कर लीजिए। सूरह कुरैश याद कीजिए, बरकत वाली सूरत है, रोजाना पढ़े जाने वाली सूरत है। चूंकि अलग मौजू है, किसी दिन मैं फजाइल बयान करूंगा। आजकल रिज़्क की वो कमी, हर किसी को परेशानी, कारोबार मंदा है। सुनिए, मैं वजीफा रमजान की बरकत की वजह से आपके सामने रखने लगा हूँ। रिज़्क में कभी नाकामी नहीं होगी। फरमाया हर नमाज के वक्त 7 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ने की आदत बना लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लीलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश्शिताइ वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू व आमनहुम मिन खौफ। फरमाया बिस्मिल्लाह 7 पढ़ने, हर मरतबा सिर्फ 7 मरतबा नमाज के लिए आते या बैठ के या जाते हुए सिर्फ नमाज के साथ 7 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ लो। अल्लाह के वली फरमाते अगर जिंदगी में कभी रिज़्क की कमी आ गई तो मुझे पकड़ लो। ये सूरह कुरैश बरकत वाली, व आमनहुम मिन खौफ, हर खौफ से अमन भी है। तो लिहाजा आदत बना लीजिए। अगर देख के नहीं, रमजान आ रहा, सूरह कुरैश जुबानी याद कीजिए, सूरह कदर याद कीजिए जिसमें लैलतुल कदर का जिक्र है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र व मा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मतलअल फज्र। अगर सारी ने एक-एक 2-2 आयतें रोजाना याद करते रहे, आसान तरीका क्या? अगर ज़हन में नहीं आ रही, उम्र ज्यादा हो गई, अपने हाथों से लिखिए। अपने छोटे बच्चे को कहिए, 5वीं वाला बच्चा लिख ले, कागज पे लिख के इराब लिखे लगा के अपने घर की किसी दीवार पे, दरवाजे पे लगा दीजिए। आते जाते नजर पड़ते रहे। ये रमजान की तैयारी, आयत पे चंद मर्तबा नजर पड़ेगी, दोहराते जाए, इंशाअल्लाह इधर रमजान खत्म होगा, हमें कुरान करीम की कई आयतें याद होंगी। सुभान अल्लाह। पहली वही कौन सी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये पहली 5 आयतें, पहली वही जो उस उम्मत हमारे लिए अल्लाह करीम ने नाज़िल फरमाई, इसे याद कीजिए। कोशिश कीजिए कि रमज़ानुल मुबारक में नमाज में पढ़ी जाने वाली सूरतें या आयात कुछ नहीं याद कर ले, ताकि रमजान के बाद नमाज पढ़े तो इंशाअल्लाह वही सूरतें बार बार नहीं बल्कि 5-6 मुकामात का इजाफा हो, पढ़ने में भी मजा आए। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम की बरकतें नाज़िल हो जाए। तो ये रमजान की बरकतें, रमजान की रहमतें लूटने के बेहतरीन तरीके हैं। फिर आगे फरमाया रमजानुल मुबारक के आने से पहले कुरान करीम पढ़ने की आदत बना। एक है जुबानी याद करना, एक है कुरान करीम पढ़ना। यकीन जानिए हमारे असलाफ में ऐसे ऐसे वाक़यात मिलते हैं, घर में बाप का इंतकाल हो गया, 2 बेटे 1 माँ रह गई, 2 बेटे 1 माँ। माँ ने कहा बेटा मेरी ख्वाहिश है हमारे घर में रोजाना 1 कुरान करीम मुकम्मल पढ़ा जाए। बेटे ने कहा अम्मा जैसे आप कहें। माँ ने कहा बेटा 10 पारे मेरे
10 तुम्हारे बेटों ने कहा लब्बैक अम्मा, जैसे आपका हुक्म। लिखा है कितने अरसे तक रोजाना उस घर में कुरान करीम मुकम्मल होता। और आप हैरान होंगे, माँ की तरबियत हो ना, ऐसी तरबियत, सुभान अल्लाह, कैसी अजीम शान माँ। वक्त आया, माँ का इंतकाल हो गया। माँ को दफनाने के बाद 2 भाई बैठे, कहने लगे माँ को कुरान से बड़ा प्यार था, चली गई, 10 पारे वो पढ़ती, 10 हमारे हिस्से में आए, अब क्या करें, क्या 20 पारे पढ़े? छोटा भाई बोला, कहने लगा नहीं, माँ को कुरान से मोहब्बत थी, माँ के हिस्से के 5 पारे में मैं लेता हूँ, 5 पारे तू ले। माँ बाप चले गए, 2 भाई कितने सालों तक उस घर में रोजाना पूरा कुरान पढ़ते, 15 पारे एक के, 15 पारे एक के। ये थे आम दिनों की बात, अभी रमजान की बात नहीं, आम दिनों की बात है। जब रमजान आ जाए तो फिर कुरान पढ़ने का क्या होगा। अगर किसी घर में 5-6 अफराद है, और अल्हम्दुलिल्लाह आम रूटीन में हमारे घरों में 5-6 अफराद होते, माँ बाप बेटा बेटी छोटा भाई वगैरह ये होते, कोशिश कीजिए कुरान पाक के सिपारे तकसीम कर लीजिए, ये सिपारे मेरे, ये तुम्हारे, ये तुम्हारे, ये तुम्हारे। कोशिश करें, अगर हो सके अल्लाह की बड़ी रहमत होगी, कुरान करीम का रोजाना खत्म कीजिए मिल के। और ये मामूली बात नहीं, फरमाया रमजान के अलावा भी खत्म कुरान पर जो दुआ मांगी जाए अल्लाह दुआ को कबूल फरमाता। आम दिनों में खत्म कुरान पर दुआ मांगो, दुआ कबूल होती है। जब रमजान के महीने में रोजाना खत्म कुरान करके दुआ मांगेंगे, अल्लाह कबूलियतों के दरवाजे तो कोशिश कीजिए। कहते हैं ना, जितना गुड़ पाओगे उतना ही मीठा हो जाएगा। आने वाले पूरे साल की तैयारी करनी है हमने। अगर मुश्किल लगता है कोई बात नहीं, जितना हो सके आप कुरान करीम को पढ़ने की कोशिश करें। बात लोगों के बारे में आता है, अपने बच्चों को लालच देते, बेटा मैं ईद पर ये नई चीज लेके दूंगा, अपनी इस्तेताअत के मुताबिक मैं तुम्हें नया मोबाइल फुला या कोई इनाम का लालच देके, क्या कहते हैं, बेटा जिसने रमजान में सबसे ज्यादा कुरान पढ़े होंगे उसको ईद के दिन ये इनाम मिलेगा। कोई नया सूट ले देता है, कोई जूती ले देता है, कोई और चीज ले देता है, तो ऐसे बच्चों में ज़ौक़ पैदा होता। बेटा अलग से पढ़ रहा है, बेटी अलग से पढ़ रही है, उन्हें पता ईद के दिन मेरे वालिद मुझे इनाम देंगे, पता नहीं वो इनाम क्या होगा। चले लालच में सही कुरान तो पढ़ेंगे ना, घर में कुरान पढ़ा जाएगा, इंशाअल्लाह कुरान की बरकतों का नज़ूल। और मैं वैसे नहीं कह रहा, आखिरी बात, अभी मौजू बड़ा तवील है, अल्लाह जिंदगी रखे अगले रमजान बयान करेंगे। मैं वैसे नहीं कह रहा, रमजान का कुरान से बड़ा गहरा ताल्लुक, रमजान का कुरान से बड़ा ही ताल्लुक। आप अंदाजा लगाइए, इमामुल अंबिया, ताजदार कायनात, रहमतुल लिल आलमीन, खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में तशरीफ लाए। अल्लाह के हुक्म से सैयदुल मलाइका हजरत सैयदना जिब्रील अमीन तमाम फरिश्तों के सरदार सिदरतुल मुंतहा के राही वही लाने वाले वो फरिश्ते जलीलुल कदर आका करीम के पास आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने भेजा है, उसका हुक्म है, मैं आपके साथ कुरान करीम का दौर करने आया। यानी दौर का क्या मतलब, पहले एक सुनाता है, दूसरा सुनता है, फिर दूसरा पढ़ता है, पहला सुनता है, इसी तरह एक दूसरे को कुरान सुनाना। जैसे हाफिज लोग नमाज तरावी की वो तैयारी में याद करने के लिए एक दूसरे को सुनाते, अंदाजा लगाइए आलम क्या होगा मदीना तैयबा
मरतबा इमाम الانبیاء जिब्रील अमीन के साथ कुरान करीम का तवक्कुल। और ये रमजान मुबारक में होता, कुरान पढ़ते, जिब्रील अमीन सुनते, फिर जिब्रील कुरान पढ़ते, प्यारे मुस्तफा कुरान सुनते थे। तो मुस्तफा करीम की सुन्नत है, रमजान का कुरान से बड़ा गहरा ताल्लुक है। कोशिश कीजिए रमजान को कुरान पढ़ पढ़ के और मुबारक बना लीजिए, रमजान को कुरान पढ़ पढ़ के और बरकतों वाला बना लीजिए, रमजान को कुरान पढ़ पढ़ के कबूलियत वाला बना लीजिए। याद रखिए दुआएं मांगना बड़ी अच्छी बात, रमजान में दुआएं भी मांगते, आगे जाके अर्ज करूंगा, लेकिन फरमाया जिसे वक़्त न मिले, इतना वक़्त भी ना मिले कि वो दुआ मांग सके, फरमाया वो कुरान ही पढ़ता रहता है। अल्लाह फरमाता है उसने अपने लिए नहीं मांगा, मेरा कुरान पढ़ता रहा। फरमाया याद रखो जितना उसने मांगना था मैं कुरान पढ़ने की वजह से उससे बेहतर अता फरमाऊंगा। ये कुरान बड़ी अज़मत वाली है, यकीन जाने रमजान को कुरान पढ़ पढ़ के बरकत वाला बनाते चले जाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। बीमारों की दुआ के लिए कहा गया, दुआ कीजिए अल्लाह सब बीमारों को शिफा अता फरमाए। उनके बड़े बेटे फौत हो गए, तमाम फौजदार के लिए भी दुआ कीजिए, अल्लाह के हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।